Bismillahirrahmanirrahim. We discussed current of injury in the previous lecture. Today we are going to apply the same knowledge here within myocardial infarction and recovery of myocardial infarction as well as ECG changes in when the heart is recovering from this damage. Myocardial. Most common damage to the heart, most common cause of current of injury is myocardial infarction. We will not define myocardial infarction. Damage to the heart, death of the myofibrils due to ischemia, उसको myocardial infarction कहते हैं. तो उसको हम देखेंगे. But before that, one hadith I would like to quote. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि इन्नल मुस्लिमा इज़ा अज़ा लिखा हुआ है इज़ा आदा अखाउल मुस्लिमे लम यज़ल फी खुरफतिल जन्नत हत्ता यरजा, कि बेशक मुसलमान जब किसी अपने दूसरे, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि जब एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की अयादत के लिए जाता है, अयादत करता है, तो वो वापस आने तक गोया जन्नत के बाग में होता है. दूसरा फरमाया कि इयादत करते हुए जितना टाइम उधर उसके पास रहता है, जब तक वो वापस ना आ जाए, वो जन्नत के बाग में होता है. क्या मतलब है? जन्नत तो अल्लाह की रज़ा का, अल्लाह की बेहतरीन रज़ा का मकाम है. जब अल्लाह मुकम्मल तौर पर राजी हो किसी से तो उसको जन्नत में ले जाएगा. तो दूसरा फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह की रज़ा का बहुत आसान जरिया है अपने मुसलमान भाई की अयादत करना. ये कितना आसान जरिया है कि हम अल्लाह की रज़ा हासिल करें. जन्नत का क्या मतलब? जन्नत मुसलमान का मकसद ही क्या है? हमारी किसी के साथ अच्छे सलूक या दुनिया में जो कुछ अमाल हम कर रहे हैं, फाइनली उसका मकसद क्या है? कि हमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, और अल्लाह की रज़ा का मकाम जो है फाइनली जन्नत है. तो ये अल्लाह पाक ने बेहतरीन आसान जरिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुसलमान भाई की इयादत करने में अल्लाह की रज़ा का जरिया है. अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए. So we are going to talk about some ECG changes, myocardial infarction, myocardial ischemia. Initial stage of the myocardial ischemia is angina, pain. There is no actual physical damage to the heart, to the muscles of the heart. It is only the reduced blood flow causing some pain. That is angina. So angina pectoris, that is the name. Angina commonly people, सारे लोगों को पता है angina दिल के पेन को कहते हैं. So in angina, when there is some ischemia to the heart without damage अभी नहीं हुआ, in angina what we observe? ECG changes. You see that current of injury, some current, that damage, that is being shown in the form of the displacement of the ST segment. And A ST segment is displaced, B ST segment is displaced, C ST segment is displaced, or इसमें भी displacement of the ST segment है, E में F में. So ST segment depression of at least 1 millimeter, एक small square, इससे ज़्यादा होनी चाहिए. ST segment की displacement should be more than or equal to 1 or more than 1 millimeter or more. And depression must be horizontal or downward sloping. Yeah, you see, this is downward sloping. It should be downward sloping. And duration of ST segment must be at least 0.08, यानी 2 खाने ST segment की total duration इतनी होनी भी जरूरी है. And changes disappear after some time and re-induced by ETT. कि ये changes angina दर्द हुआ है, थोड़ी देर के लिए दर्द खत्म हो जाता है, या रेस्ट करते हैं तो दर्द खत्म हो जाता है. These changes disappear. angina के दौरान ये पेन होंगी, जब angina रिलीव हो जाता है रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाता है. These changes disappear. और जब एक्सरसाइज करता है ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, वो चढ़ाई चढ़ता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है, या एक्चुअल ट्रेडमिल टेस्ट जिसको कहते हैं ETT जब करते हैं, तो उसमें फिर दोबारा अपीयर हो जाते हैं. तो दैट इज एंजाइना. So angina may be their current of ये ST depression or ST elevation is shown. ST depression is very common in angina of 1 millimeter or more. इसमें depression show होती है.
Now, damage to the heart in causing the ischemia, reduced blood flow, causing damage to the muscles, that is known as infarction. अगर उस ischemia से muscle damage हो गए, that is infarction. तो infarction किस जगह पे हो सकती है? एंड आपको पता है कि हार्ट की पोजीशन ऐसी है कि एंटीरियर ज्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऑलमोस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है. तो एंटीरियर पार्ट ये हार्ट की पोजीशन है, ये एपेक्स है और ये बेस ऑफ द हार्ट है. ये एंटीरियर इन्फार्क्शन, ये वेंट्रिकुलर. एंटीरियर इन्फार्क्शन ये एंटीरियर पार्ट है. और इंफीरियर इन्फार्क्शन तकरीबन ये इंफीरियर के साथ ये राइट वेंट्रिकल ज्यादातर आ जाता है. एंड एंट्रोलेटरल भी उसकी तरफ आ जाता है, एंट्रोलेटरल थर्ड पोर्शन. तो डिफरेंट एरियाज पे ईसीजी चेंजेस. अगर ये एरिया डैमेज हो, करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम दिस एरिया इन दैट डायरेक्शन. If that area is damaged, current will be flowing in this direction. और या तो different areas infarcted will cause the different vectors, different current flowing in different directions. और किस लीड में कैसी depression or elevation show होगी ST segment की. Now we will call it, because previous lecture में हमने discuss कर लिया है, it is the ST depression or ST elevation showing the current of injury. Now the direction of the vector in an infarcted region, ये तो सीधी सी बात है. If this is a heart, ये हार्ट है, ये पूरी बॉडी का वो है, ये चेस्ट में पड़ा हुआ है. This is infarcted area, ये जो एरिया डैश एरिया जो दिखाया हुआ है. This is current of injury. This is current of injury. It is flowing from this area to whole of the myocardium और उसका वेक्टर तकरीबन ये बनेगा. This is the current is flowing different vector different में, उसका current of injury का vector इतना बनेगा. आप इसको represent करें different leads पर, तो उसके मुताबिक TP interval will be displaced upward or downward. तो accordingly उसमें हम जब ECG देखेंगे, ST segment will be elevated as compared to this TP interval. ST segment elevated और ST segment से ये नीचे होगा, depressed और elevated ST segment देखेंगे. तो direction of the flow of the current will be from the damaged area toward the normal area. So this is damaged area is on this side, current is flowing on that side. Say if we record V1, V2, V3, you see ये कहाँ पे है, हमने डिस्कस किया था. V1 चेस्ट के इधर स्टर्नम के राइट साइड पे फोर्थ इंटरकास्टल, V2 स्टर्नम के लेफ्ट साइड पे फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस में, V3 भी तकरीबन इसके करीब ही है. और करंट ऑफ इंजरी इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट. तो इन सब में नेगेटिव रिकॉर्डिंग होगी. When जब impulses में आएगा तो mostly current will be flowing in that direction away from these all the three leads. वैसे भी ये negative waves है, तो अब करंट भी दूसरी. तो नेगेटिव वेव्स विल बी रिकॉर्डेड इन दिस infarction. So horizontal section showing anterior infarction, ये anterior, इसको anterior infarction कहें, and the vectors are directed posteriorly away from the infarcted zone during the initial part of the ventricular depolarization. जब अभी ventricular depolarization शुरू नहीं हुई या हुई है तो बहुत थोड़ी है. तो करंट किधर जा रहा है? अवे फ्रॉम दीज लीड्स, इसके पोस्टीरियर की तरफ जा रहा है. सो नेगेटिव वेव्स आर नोटेड इन V1, V2, V3. So there will be negative. That is how we will record the current of injury in these. ST segment depression भी देखेंगे और waves भी हम उसको negative record करेंगे. Acute myocardial infarction में ST segment elevation, earliest sign of persist for a few days. जब infarction होगी, इसमें क्या show होगा? Current of injury show होगी in these. Infarction किसी जगह पे करंट ऑफ इंजरी विल बी शोन इन डिफरेंट लीड्स. अब वो देखते हैं कि किस लीड्स में इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगी. सो ST segment elevation, earliest sign persist for a few days. Then after large upright T wave in the leads showing ST elevation. जिन लीड्स में ST elevation नजर आ रही होगी उसमें T wave काफी बड़ी लार्ज जाइंट वेव नजर आती है. जिसमें ST एलिवेशन शो रही होगी, ST एलिवेशन, उसमें T वेव भी काफी बड़ी सही अपराइट T वेव नजर आएगी. ST एलिवेशन के बाद अपराइट T वेव है, यानी अपवर्ड T वेव है इन द लीड शोइंग द ST एलिवेशन. जिन लीड्स में ST एलिवेशन नजर आ रही है उसमें T वेव काफी बड़ी होगी, अपराइट होगी. 24 आवर्स तक, ये 24 आवर तक रहेगी. देन T वेव इन्वर्शन ओवर द कोर्स ऑफ 1 to 3 days. ये हम
डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं कि ये पहले अपराइट थी, अब इन्वर्शन हो गया, रिकवरी की स्टेजेस में हम आगे देखेंगे। तो टी वेव इन्वर्शन ओवर द कोर्स ऑफ 1 to 3 डेज, ये 24 आवर्स के अंदर अंदर ये है, एंड 1 to 3 डेज में टी वेव, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन टी वेव इज इन्वर्टेड इन दीज लीड्स and development of abnormal Q wave within 1 to 3 days। इन्हीं डेज में ये भी पॉसिबल है कि Q वेव बहुत बड़ी पैदा हो जाए। आगे हम देखें एबनॉर्मल क्यों लिखा हुआ है। Q वेव यूजुअली बहुत छोटी सी होती है, हम PQ सेगमेंट को आमतौर पर PR सेगमेंट बोलते हैं, इसलिए कि Q वेव आमतौर पर बहुत छोटी सी कभी नजर ही नहीं आती ECG में, हम PR इंटरवल बोलते रहते हैं। एक्चुअली वो PQ इंटरवल, व्हाट इज द PR इंटरवल, बिगिनिंग ऑफ द P वेव टू बिगिनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, जो P वेव और PQ सेगमेंट जो दरमियान में आते हैं, इन दोनों को मिलाकर PR इंटरवल होता है। एक्चुअली वो PQ इंटरवल होता है। QRS कॉम्प्लेक्स के शुरू से हम देखते हैं, Q वेव के शुरू से देखते हैं, Q वेव नजर नहीं आती है इसलिए R वेव बोलते हैं, PR इंटरवल होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल Q वेव, काफी बड़ी Q वेव इसमें नजर आएगी इन्फेक्टेड एरिया में Q वेव, आगे मैं ECG में दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। एंड क्राइटेरिया फॉर एबनॉर्मल Q वेव, चलें ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, पढ़ लें जो जिसको इंटरेस्ट हो। Q ड्यूरेशन 0.04 सेकंड और मोर, Q वेव कितनी हो, जो Q वेव एबनॉर्मल Q वेव पैदा हुई, इसका एटलीस्ट उसकी ड्यूरेशन एक खाना होनी चाहिए, 0.04 सेकंड। 0.04 सेकंड इज 1 खाना, 1 मिलीमीटर। तो Q वेव ड्यूरेशन इतनी होनी चाहिए, उसको हम Q वेव नॉर्मल। और QR रेशो बिटवीन Q वेव एंड R वेव, उनके रेशो करें 25% और ग्रेटर, यानी इतनी बड़ी R वेव के मुकाबले में 25% और ग्रेटर इसकी रेशो एटलीस्ट होनी चाहिए Q वेव, तब हम उसको कहते हैं। तो मोर डिटेल है, लेकिन बहरहाल आपके लिए इतना काफी, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए इतना काफी है कि Q वेव क्या ऐसे अपीयर होती है। तो 1/4 ऑफ द R वेव इन दी सेम लीड, वो कहते हैं 25% का क्या मतलब है, 1/4 ऑफ द R वेव, अगर Q वेव उसी लीड में R वेव के मुकाबले में 1/4 एटलीस्ट हो, तो उसको हम Q वेव बोलते हैं। साइट्स ऑफ इन्फेक्शन एंड चेंजेस इन दी रेस्पेक्टिव लीड्स, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट इन्फेक्टेड एरियाज में किन किन लीड्स में चेंजेस आती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में इन्फेक्शन, ये एंटीरियर इन्फेक्शन है ज्यादातर, दैट इज साइट चेंजेस। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटीरियर इन्फेक्शन, इसमें देयर इज एंटीरियो सेप्टल इन्फेक्शन हो, एंटीरियर में और सेप्टम में इन्वॉल्व हो, तो V1 and 2 V3 में ये इसकी में चेंजेस आती हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ST एलिमिनेशन या T वेव इन्वर्शन या जो Q वेव का पैदा होना, इन लीड्स में पैदा होना। एंटीरियो एपिकल, अगर आगे एंटीरियर आगे टुवर्ड द एंड ऑफ दी एपेक्स के करीब है, V3 V5, अब यू कैन इमेजिन ये सेप्टम है तो V3 वो नीचे, मेरा हाथ शायद आप मेरे हाथ नजर नहीं आ रहे, चेस्ट मेरी नजर नहीं आ रही है कैमरे में, तो इट वी आर मूविंग टुवर्ड द एपेक्स। एपेक्स उसका कहाँ पे है, वो V4 एंड V5 के करीब एपेक्स है, एपेक्स उधर रहता है, मिड एक्सिलरी लाइन वो एपेक्स होता है, तो वहां पे हो। एंटीरियो एपिकल V3 V2 5 में चेंजेस नजर आए। और इन्फीरियर इन्फेक्शन और पोस्टीरियर इन्फेक्शन, तो लीड बाइपोलर लीड 2 3 AVF V1 V2 इनमें आता है। V6 7 को 7 9 को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, हमने स्टैंडर्ड ECG की बात की है 12 लीड, ये तो V5 V6 तक हमने देखी हुई है, V7 8 9 अभी हमने देखी नहीं है, लेकिन बहरहाल देखने के लिए पोस्टीरियर इन्फेक्शन देखने के लिए V6 के बाद आगे पोस्टीरियर साइड पे जाके ये V7 और V8 और V9 पोस्टीरियर साइड पे लग जाए, आपको पता है मिड एक्सिलरी लाइन और फिर पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, और उससे भी पीछे जब जाएंगे दैट विल बी 7 और 8 और 9, अगर चेस्ट लीड हम लगाना चाहें उनमें पोस्टीरियर इन्फेक्शन है तो इनमें ज्यादा चेंजेस नजर आएंगी। लेटरल साइड, वो जब शुरू की डायग्राम, लेटरल अगर इन्फेक्शन है तो लीड 1 में और AVL में, लेटरल साइड आपने देखी थी ना, लेफ्ट साइड पे लेटरल एंट्रोलेटरल हमने वहां पे, तो लेफ्ट साइड पे AVL में और लीड 1 में और V5 to 6 में लेटरल है, इस साइड पे मेरा हाथ अगर नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे। सो एंट्रोलेटरल में इट विल बी लीड 1 AVL वही हैं, V1 to V6, इस सब में चेंजेस आ सकते हैं। V1 to 6 सारी इंक्लूड कर दी है लेटरल साइड पे अगर है
तो अगर बहुत एक्सटेंसिव डैमेज है सर्कुलर में, बहुत एरिया इन्वॉल्व है, तो देन एपिकल इन्फॉक्शन भी 1 2 3 बी 1 2 3 4 5 6 सारी लीड में, बाइपोलर लीड तीनों में और सारी चेस्ट लीड में सब में ये ECG चेंजेस हमें नजर आएंगी। सो राइट वेंट्रिकुलर इन्फॉक्शन में V2 to V4, चलिए ये भी इंफीरियर इन्फॉक्शन है, V2 to V4। ECG अब ECG देख लें एग्जैक्टली। एंट्रोलेटरल इन्फॉक्शन में दिस एंट्रोलेटरल इन्फॉक्शन में आप देखें V1 V2 V3 में अपोजिट ये QRS कॉम्प्लेक्स अपोजिट आ रहे हैं दैट साइड, लेकिन इसके साथ देखें आगे एंट्रोलेटरल इन्फॉक्शन में दिस इज Q वेव, यू सी वेरी बिग Q वेव, दिस इज Q वेव, R वेव ये ऊपर है, दिस इज Q वेव, इतनी Q वेव तो आपने कभी नहीं देखी होगी, दिस इज ऑल ऑफ दिस वेव डाउनवर्ड इज Q वेव एंड दिस ST एलिवेशन भी आप देख रहे हैं, ST सेगमेंट इज एलिवेटेड 1 मिलीमीटर, एक खाना है कम से कम, एक खाना या 2 खाने, ST सेगमेंट इज एलिवेटेड, T वेव इज इन्वर्टेड ऑल दिस, इन सब में T वेव भी इन्वर्शन है और ST सेगमेंट एलिवेशन भी है और Q वेव भी नजर आ रही है इन तीनों में ये Q वेव काफी बड़ी है, ये बड़ी है तो बहुत ही बड़ी है, ये R वेव नहीं है, R वेव ये ऊपर है, देखे ना, ये P वेव के बाद ये Q वेव है एंड R एंड ये ST सेगमेंट, ये J पॉइंट ये ऊपर चला गया, तो ST सेगमेंट इज एलिवेटेड इन दीज लीड्स, कौन सी V4 V5 एंड V6, इसमें आप देख लें इन लीड्स में हमें चेंजेस नजर आ रहे हैं, इनमें तो अपोजिट V1 V2 3 V अपोजिट कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड हुए। ECG इन इंफीरियर इन्फॉक्शन inferior MI changes in lead 2 3 AVF, पीछे हम स्लाइड में देख के आए ना, changes are in the lead 2 bipolar limb lead 2 and 3 and AVF में changes नजर आती हैं। This is lead 2, you see this is inverted T wave और ST यहाँ पे ज्यादा नजर नहीं आ रही, ST segment is यहाँ पे ST segment is elevated, lead 3 में ज्यादा नजर आ रहा है, lead 3 में ST segment is elevated, AVF में भी inverted T waves, these are the T waves, AVF में inverted T wave और इसमें भी inverted T waves, this is QRS complex, this is inverted T waves और ST elevation कहाँ पे नजर आ रही है, ये ST is elevated, so changes in myocardial infarction in lead 3। acute anterior wall infarction ये भी देखें, this is acute, lead 1 में ST elevation नजर आ रही है, ST elevation और लीड 2 में ST डिप्रेशन, इसमें डिप्रेशन हम देखा ना, किसी लीड में डिप्रेशन शो होगी करंट ऑफ इंजरी और किसी में एलिवेशन शो होगी, इसमें भी QT सेगमेंट, दिस इज डिप्रेशन, ST सेगमेंट इज डिप्रेस्ड, ये देखें ST एलिवेशन, दिस इज ST, दिस इज TP इंटरवल यहाँ पे है, दिस इज ST सेगमेंट एलिवेटेड, तो इसकी करंट ऑफ इंजरी उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो एक्यूट एंटीरियर इन्वॉल्व इन्फॉक्शन में ये देख रहे हैं ST एलिवेशन, ST डिप्रेशन। पोस्टीरियर वॉल एपिकल इन्फॉक्शन में ये देखें P वेव QRS कॉम्प्लेक्स, ST का एलिवेशन ज्यादा नजर नहीं आ रही, ये लीड 2 में अच्छी खासी नजर आ रही, यहाँ पे देखें ना दोनों एक जगह पे हैं और इस जगह पे दिस मच, ऐसे लीड 2 में दैट इज पोस्टीरियर वॉल एपिकल इन्फॉक्शन में दिस इज ST सेगमेंट एलिवेशन, J पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट इज और ये TP इंटरवल, एक्चुअल फिर दोबारा याद कराने, एक्चुअल जो रिकॉर्डिंग है ये नीचे है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन तो इधर है, ये नीचे आया है, लेकिन अपेरेंटली हमें ये नजर आ रहा है कि ST सेगमेंट इज एलिवेटेड, इसमें भी ST सेगमेंट इज एलिवेटेड, so this is the posterior wall apical infarction V2 में that is the ST segment, तो yes it is depressed, ये है ST segment, ये QRS complex यहाँ पे complete हो रहा है, ST segment is depressed in V2। so a few जो मोटी मोटी बातें जो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में ECG चेंजेस या करंट ऑफ इंजरी जो हमने डिटेल में बात पिछले लेक्चर में बात की, क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लीड्स में, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इन लीड्स में चेंजेस क्या आती हैं, इसकी हमने बात की। नाउ रिकवरी
ऑफ दिस मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, उसमें ईसीजी चेंजेस जो कुछ आती हैं। रिकवरी ऑफ द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, एक हम बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, उसकी रिकवरी के साथ ईसीजी चेंजेस कैसे नॉर्मल की तरफ जाएंगी या क्या चीज़ें परसिस्ट कर जाएंगी, इन्फॉक्शन होगी। अक्यूट इन्फॉक्शन हुई है, करंट ऑफ इंजरी एंड स्ट्रांग ऑन डे 1, हम पीछे देख के आ गए, डे 1 में वेरी स्ट्रांग करंट ऑफ इंजरी शो होती है, उसके बाद वो रिकवर शुरू कर देता है। टीपी सेगमेंट डिस्प्लेस कंपेयर टू एसटी सेगमेंट, लेकिन हम इसको बोलते क्या है, एसटी सेगमेंट इज डिस्प्लेस्ड, हम कहते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेटेड या एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोनों के एसटी सेगमेंट इज जैसे टीपी वेव, तो एसटी सेगमेंट अगर ये असल में ये नीचे है, लेकिन हम बोलते हैं इसको ये है कि एसटी सेगमेंट इज एलिवेटेड। असल में ये ऊपर जाता है एसटी सेगमेंट, तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे हम बोलते ये है कि एसटी सेगमेंट इज डिप्रेस्ड। इसका हम आसानी के लिए क्या, एज कंपेयर टू टीपी सेगमेंट, एज कंपेयर टू पी क्यू सेगमेंट या पी आर सेगमेंट, वो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन वो उसके मुकाबले में ये डिप्रेस है या ऊपर है। सो टीपी सेगमेंट डिस्प्लेस कंपेयर टू एसटी सेगमेंट, दोनों को बात, एसटी सेगमेंट डिस्प्लेस एज कंपेयर टू टीपी सेगमेंट। इंजरी पोटेंशियल रिड्यूसेस आफ्टर 1 वीक, हैड 1 वीक, एक हफ्ते के बाद, एंड फर्दर रिड्यूसेस इन 3 वीक्स, पहले कम होती जाती है ये करंट ऑफ इंजरी, जो दैट इंजरी पोटेंशियल जो है, एंड रिमेन्स सच at least at 1 year time, थोड़ी करंट ऑफ ये डैमेज शो करती रहती है, रिमेन सच एट 1 year टाइम, very weak. A Q wave may persist indicating loss of some muscle mass, अगर मसल मास का कोई डैमेज परमानेंटली डैमेज हो गया, इन्फॉक्टेड हो गया, और रिकवरी में वो एरिया मुकम्मल डैमेज हो चुका है, वो तो दैट इज रिप्लेस विद द फाइब्रस टिश्यू, मसल खत्म हो गया, फाइब्रस टिश्यू, तो दैट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ परसिस्टेंट ऑफ क्यू वेव उसमें रहती है। सो ये देख ले, सेम डे पे दिस इज दी मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ये देख ले क्या सेम डे पे क्या हुआ है, क्या नजर आ रहा है, दिस एसटी सेगमेंट इज, दिस इज टीपी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट इज डिप्रेस्ड, और 1 वीक के बाद ये रिकवरी शुरू हो गया, ये एसटी सेगमेंट पहले बहुत नीचे था, ये अब ऊपर आ गया, और 3 वीक के ऊपर थोड़ा सा सेगमेंट नीचे रह गया, इट इज कवर, और लेकिन इसमें 1 ईयर के बाद ये थोड़ी सी बात, तो ये रिकवरी स्टेजेस है। Recovery from infarction. In some patients, the infarcted area never develops adequate blood flow. Some of the muscle dies, वो Q wave वाली बात कर रहे हैं, and loss of muscle mass and large Q wave develops. ये पिछले जो हमने देखे ना, इसमें हमने ये तस्वर किया होगा कि infarction whole of the damaged area has recovered. इसमें रिकवर हो गया, देयर इज नो क्यू वेव, क्यू वेव उतनी है, ये क्यू वेव यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे भी क्यू वेव वो नॉर्मल क्यू वेव है, ये दीज आर द नॉर्मल क्यू वेव्स, सब में सारे इनमें 1 ईयर के बाद भी और शुरू में क्यू वेव सब में नॉर्मल है। लेकिन अगर डैमेज रह जाता है हार्ट में डैमेज रह जाता है, तो देयर इज लॉस ऑफ मसल मास, इट कॉजेज लार्ज क्यू वेव डेवलप्स, एंड एंटीरियर इन्फॉक्शन में क्यू वेव इन लीड 1 बाइपोलर लीड 1 में, और पोस्टीरियर इन्फॉक्शन में क्यू वेव इन लीड 3, ये बाइपोलर की बात कर रहे हैं, बाइपोलर लीड 3 में, पोस्टीरियर इन्फॉक्शन में लीड 3 में क्यू वेव रहती है, और एंटीरियर इन्फॉक्शन में लीड 1 में रहती है। अब आगे डायग्राम में देख ले, दिस इज लीड 1 में, एंटीरियर इन्फॉक्शन में लीड 1 में क्यू वेव, ये दिस इज क्यू वेव मोर देन 1/4, इसका 1/4 से ज्यादा है, 1/4, तो दिस इज लीड 3 में क्यू वेव कोई नहीं है, ये एंटीरियर इन्फॉक्शन है। पोस्टीरियर इन्फॉक्शन में लीड 1 में कोई क्यू वेव नहीं है, लीड 3 में क्यू वेव रहेगी, दैट्स हाउ ये 1 ईयर ओल्ड इन्फॉक्शन, जब ज्यादा पुरानी इन्फॉक्शन हो जाए उसमें क्यू वेव परसिस्ट करती है, एंटीरियर इन्फॉक्शन हो तो लीड 1 में क्यू वेव परसिस्ट करती है इवन आफ्टर 1 ईयर, और अगर पोस्टीरियर इन्फॉक्शन हो तो दैट इज लीड 3 में क्यू वेव परसिस्ट। तो ये थोड़ी सी बेसिक, जो कार्डियोलॉजी तो हमने नहीं पढ़नी, कार्डियोलॉजी तो आप कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे तो फिर पढ़ेंगे, ये बेसिक फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स अबाउट दिस इन्फॉक्शन एंड करंट इंजरी हमने ये डिस्कस किया। सो दिस इज हाउ, सो ये तो हमने इन्फॉक्शन। टी वेव की कुछ और एबनॉर्मलिटीज की हम बात करते हैं। नॉर्मली टी वेव इज पॉजिटिव इन बाइपोलर लिम्ब लीड, तीनों में हमने बाइपोलर लिम्ब लीड में देखा हुआ है, तीनों में इट इज अपराइट टी वेव होती है। एपेक्स एंड आउटर वॉल डिपोलराइजेस अर्लियर, उसकी वजह क्या है टी वेव के डिपोलराइजेशन, इसको हम डिपोलराइजेशन उल्टी रिकॉर्ड होते हैं, एपेक्स
Last part of the heart to be depolarized is toward the base of the heart. Apex and outer wall depolarizes earlier. Apex तो पहले depolarize होता है, base बाद में depolarize होता है, repolarize फिर reverse direction में होते हैं, वो area पहले depolarize हो जाता है. So the T wave abnormality, if sequence of the depolarization is abnormal, अगर depolarization का sequence खराब हो जाए तो ये भी abnormal हो जाता है. The damaged myocardium often causes abnormal inverted T wave. वो हमने देखी थी ECG में, हमने इन्वर्टेड टी वेव देखी हुई है. डैमेज मायोकार्डियम में रीपोलराइजेशन का प्रोसेस भी खराब हो जाता है तो टी वेव भी खराब हो जाती है. माइल्ड इस्कीमिया आल्सो कॉजेज इन्वर्शन ऑफ द टी वेव. इन्वर्शन ऑफ टी वेव हमने देखी हुई इस्कीमिया में. ये देख लें कैसे. दिस इज इन्वर्टेड टी वेव. Inverted T wave in mild ischemia. ये T wave inversion, this is T wave inversion, this is T wave inversion. आप देख सकते हैं एक ECG में सारे में this is ischemia, T wave inversion is being recorded. और आखिरी बात हम ये कर दें, एक और किस्म की T wave हम आउट ऑफ आवर स्कोप है, लेकिन हम थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे और फिर फाइनल ईयर और कार्डियोलॉजी में आप अप्लाई करेंगे. डिजिटैलिस या डिजॉक्सिन. डिजॉक्सिन एक ड्रग है जो डिजिटैलिस में पाई जाती है, एक प्लांट है उसके उसमें ये पाई जाती है. डिजॉक्सिन के नाम से ड्रग है, विच इज ए कार्डियोटॉनिक विच काजेज द मोर फोर्स ऑफ द कंट्रैक्शन. इट इज गिवन इन कार्डियक फेलियर्स. हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए डिजॉक्सिन इज वेरी कॉमनली यूज्ड ड्रग हार्ट फेलियर में इस्तेमाल करने के लिए. दिस डिजॉक्सिन आल्सो अफेक्ट्स द टी वेव. तो इसमें डिजॉक्सिन में डिजिटैलिस एक्टिव इंग्रेडिएंट डिजॉक्सिन है. इसमें डिजिटैलिस तो प्लांट है ना, उसका पत्ते होते हैं, तो उसके पत्ते हैं. यूज टू स्ट्रेंथन द मायोकार्डियम इन हार्ट फेलियर हम इस्तेमाल करते हैं. ओवरडोजेज अगर डिजॉक्सिन की हो जाए, बाजू का डिजॉक्सिन बाद लोगों को डिजॉक्सिन पे घर भेज दिया जाता है कि उनका हार्ट फेलियर तो बाद लोगों का लंबा लंबा चलता है, तो हार्ट फेलियर में उनको तो वो डिजॉक्सिन खा रहे हैं, अगर वो गलत उनकी डोजेज खराब हो जाए किसी वजह से, ओवर डोजेज मे कॉज द सेवरल टाइप्स ऑफ द एब्नॉर्मलिटीज इन टी वेव. तो इन्वर्टेड टी वेव, बाईफेजिक टी वेव, कभी टी वेव इन्वर्ट कर देती है, कभी बाईफेजिक हो जाए. बाईफेजिक क्या होती है अभी हम आते हैं, ये देखें. दिस इज बाईफेजिक. ऊपर भी है नीचे भी है, ये ऊपर भी है नीचे भी है, ये टी वेव है, दोनों मिलकर ये सारी की सारी टी वेव है. कैसे आ रही है, यानी कुछ पार्ट उसका ऊपर भी है और कुछ नीचे भी है. दिस इज द बाईफेजिक टी वेव. तो ये डिजॉक्सिन पॉइजनिंग में, डिजॉक्सिन ओवरडोजेज में बाईफेजिक टी वेव और इन्वर्टेड टी वेव, बाद इन्वर्टेड टी वेव और बाद बाईफेजिक टी वेव इज कॉमन. तो टी वेव एब्नॉर्मलिटी हमारे में भी हमारे स्कोप से बाहर है, लेकिन कार्डियोलॉजी में इट इज़ वेरी कॉमनली गिवन और आपकी किताब में दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे बयान कर दिया. सो होप यू आर फॉलोइंग मी. और इसके साथ ही हम कार्डिक फिजियोलॉजी ऑफ ECG एंड हार्ट के जो हमने इस टॉपिक जो शुरू किए थे, ये हार्ट की फिजियोलॉजी हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह. अब हम सर्कुलेशन पे शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह ताला. सर्कुलेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी जो आपको पता है कि जो गाइटन लोग पढ़ते हैं, बड़ा लंबा टॉपिक्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस इंशाल्लाह. नेक्स्ट हम हार्ट को ख़त्म करके नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इंशाल्लाह शुरू करेंगे. और इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लें, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, और अब बाकी दोस्तों को कहें शेयर भी करें, उनको सब्सक्राइब कराएं, ताकि कभी कभी वीडियो लेट मैं लोड करता हूँ. आप देखें ना, कल मैंने कोई कल लोड नहीं की, कभी ऐसे हो जाता है, रह जाती है. तो जब आ जाए तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें. और असल मकसद ये है, मेरा भी मकसद ये है, और आप भी शेयर इस मकसद से करें कि आपके बाकी भाइयों को, बहनों को या दोस्तों को फ़ायदा हो सके. तो आपकी तरफ से सदका जारिया भी होगा, मेरी तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीयत ही सदका जारिया की वजह से ये मैंने शुरू कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ काम. तो इसको शेयर करें इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला.